साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे किसान आंदोलन से जुड़ी खबर के साथ। 26 जनवरी को किसानों के ट्रैक्टर मार्च पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई। इस मामले की सुनवाई परसों होगी। जी हां, इस मामले की सुनवाई अब 20 जनवरी को होगी। कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली में कौन आएगा कौन जाएगा ये पुलिस तय करे। दरअसल दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपनी याचिका में किसानों के 26 जनवरी को होने वाले ट्रैक्टर मार्च पर रोक लगाने की मांग की है। केस की अगली सुनवाई परसों होगी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में केस को एडजर्न करते हुए कहा कि परसों होगी और उन्होंने अटॉर्नी जनरल को भी कहा है कि जो बातें मैंने कही हैं, जो तथ्य रखे हैं, इनमें क्या है, क्या सच्चाई, जो हमने रिप्लाई फाइल किया है, जो रिप्लाई दिया है, उसमें सारी बातें रखी गई हैं और ये बात हुई है। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन का काम करना सीजीआई साहब ने कहा और वो सत्य भी है, अटल सत्य है कि दिल्ली पुलिस लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे। उनके पास ये भी बात आई, ना तो उनके पास पुलिस की कमी है, ना बैरिकेड की कमी है, कोई कमी नहीं है। धारा 144 लगी हुई है। धारा 144 खुद में क्या आप उसे मजाक में समझते हैं? धारा 144 कहीं कोई व्यक्ति इकट्ठा नहीं हो सकता। लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है, डेमोक्रेसी के अधिकारों का हनन होता है। धारा 144 जो कि दिल्ली देश की राजधानी में लगी हुई है और ऐसे समय पे लगी हुई है और ऐसे समय के बहुत महीने पहले से लगी हुई है जब से रिपब्लिक डे होने वाला था, पिछले वर्ष से लगी हुई है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल का क्या कहना है, वो भी जरा आप सुन लें। और ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੇ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਰਡਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਨਾ ਜਾਂ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਹਰ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ੈਲਟਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਇਹ ਮਾਰਚ ਹਰ ਹਾਲ ਕੱਢਿਆ ਹੀ ਜਾਣਾਗਾ? ਨਹੀਂ, ਮਾਰਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਪਰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਪੀਸਫੁਲ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵਾਇਲੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਵਾਇਲੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਏਰੀਆ 'ਚ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਸਟੰਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਇਦਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਟ ਵਾਸ ਪੀਸਫੁਲ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਪੀਸਫੁल, ਦਿਸ विल बी पीसफुल, ਇਹਦੇ माने ਕੀ ਹੈ? माने पीसफुल। बलबीर सिंह राजेवाल को आपने सुना, अब आपको किसान नेता जोगिंदर सिंह उग्राहा को सुनाते हैं कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਗਈ ਸੀ 26 ਤਰੀਕ ਦੇ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ। ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਅਸਲ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਗਈ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗਈ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਨਾ ਹੀ ਆ। ਚਲੋ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਚਲਾਉਣੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਧਰਨ ਦਿੱਤੀ। ਇਹੋ ਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮਾਰਚ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਕਹਿੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਮਾਰਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮਾਰਚ ਵਾਸਤੇ ਯਾਨੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜੀ ਕਰਕੇ ਮਾਰਚ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਬੁੱਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਏ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਦੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਮੰਗਿਆ, ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਪੀਸਫੁਲੀ ਮਾਰਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਸ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਗਰਾਹਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਰਿਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਮਾਰਚ ਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਹੋਊਗੀ ਔਰ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਦੇਖੋ, ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਗਲਤ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਲਾ ਨੇ ਗਲਤ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਗਲਤ ਰੱਖ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਕੁਛ ਗਲਤ ਲੱਗਦਾ ਕੋਰਟ ਨੂੰ, ਕੋਰਟ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੀਸਫੁਲ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਕ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈ ਹੋਈ ਉੱਥੇ, ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਇਹ ਫੋਰਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫੋਰਸ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਾਕਾ ਤੋੜਿਆ, ਉਹ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ
ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਾਨਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਫਲਾਣੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਧਮਕਾਣੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਤਾ, ਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਮਨਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਨਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਮਨਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਗੇ। वहीं बीजेपी नेता हरजीत गरेवाल की माने तो किसानों को 26 जनवरी के दिन परेड नहीं करनी चाहिए, 26 की बजाय वो कोई और दिन चुन सकते हैं। नहीं, ट्रैक्टर मार्च कर लैन, शांतमई कर लैन, पर दिल्ली के अंदर ठीक नहीं है। और मैं ये समझदा कि इहदे नाल कोई भी गड़बड़ हो सकती है, दूसरे व्यक्ति कर सकते हैं, किसान ना भी करन। ते जिहड़े मुल्क के हालात खराब करना चाहुंदे ने और उन्होंने ना तो किसानों का शांतमई अंदोलन अच्छा लग रहा और ना ही सरकार दे नाल गलबात जिहड़ी चल रही है वो अच्छी लग रही है। तो इस करके किसानों भी इस चीज़ से सोच विचार करके, बड़े सियाणे लीडर भी है किसानों च, तो गलबात करके सोच विचार करके फिर अगे कोई स्टैप लेना चाहिए। ये भी कोई इस तरह की गल नहीं करनी चाहिए जिहदे नाल उत्थों दे रहण वाले लोगों को नुकसान लगे जां कोई गलबात लगे, जां साडे 26 जनवरी जिहड़ा देश का गौरव आ उस च विघन पवे, जां तां वो पहलां तो मार्च करते आउंदे होण 26 जनवरी ते। और दूसरा मैं ये तो कहा ही नहीं कि किसान कोई गड़बड़ करनगे, मैं तो ये कहना कि किसानों के नाम से कोई दूसरा व्यक्ति भी कर सकता, तो सानू उसका ध्यान रखना पऊगा। और उहदे च किसानों को उही सोच के कि उत्थों के निवासियों कोई प्रॉब्लम ना होवे, तो एक देश का मैसेज कोई गलत ना जाए, ये सारा सोच के उन्होंने करना चाहिए, इहदे ते विचार कर लैण। बीकेयू हरियाणा के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी का समस्त राजनीतिक दलों की बैठक में शामिल होने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा ने इस बैठक पर स्पष्टीकरण दिया और चढ़ूनी को लेकर बड़ी बात कही, तो वहीं गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने न्यूज 18 पर आकर इस विवाद पर अपना पक्ष रखा। यह रिपोर्ट देखिए। तीन कृषि व्यापार कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सरहदों पर आंदोलन कर रहे किसानों की अगुवाई कर रहे किसान नेताओं में से एक गुरनाम सिंह चढ़ूनी सवालों में है। चढ़ूनी की गैर बीजेपी दलों के नेताओं के साथ की गई बैठक को लेकर सवाल उठने लगे तो संयुक्त किसान मोर्चा को इस मसले पर स्पष्टीकरण देने के लिए आगे आना पड़ा। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से कहा गया है कि चढ़ूनी द्वारा बुलाई समस्त राजनीतिक दलों की बैठक से उनका कोई लेना देना नहीं, यानी कि कोई संबंध नहीं, और न ही राजनीतिक दलों के साथ की जा रही गतिविधियों से संबंध है। साथ ही इस मामले की जांच के लिए कमेटी का गठन भी कर दिया गया है। फैसला किया कि 3 मैंबरी कमेटी का गठन किया है। वो 3 मैंबरी कमेटी है जिहड़ी चढ़ूनी दे नाल गल करूगी। अगर चढ़ूनी दोषी पाया जाता है तो इहदे ते कार्रवाई होगी। उधर राजनीतिक दलों के साथ अपने संपर्क से उपजे विवाद पर किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने न्यूज 18 पर अपनी सफाई दी है। उन्होंने कहा कि सियासी दलों की बैठक में जाने का मकसद आंदोलन को नुकसान पहुंचाना नहीं था। एक कमेटी बनी हुई है जिहदे च 8-10 बंदे हैं, वो 8-10 बंदियां च एक मेरा भी ना है। ये मैं नहीं बुलाई मीटिंग, ये मैं नहीं अकले ने किया, ये करने वाले होर सी, पर उन्हां च एक मेरा ना है। अभी तक इस किसान आंदोलन से नेताओं को दूर रखा गया था। किसानों ने किसी भी दल के नेता को अपने मंच का इस्तेमाल नहीं करने दिया। किसान नेता इस आंदोलन को सियासत से परे रखना चाहते हैं, लेकिन गुरनाम सिंह चढ़ूनी की राजनीतिक दलों के नेताओं के जन संवाद को लेकर की गई बैठक से बाकी किसान नेता नाराज हो चुके हैं। उन्हें लगता है कि इस कदम से आंदोलन अपने मकसद से भटक जाएगा। अब देखना होगा कि गुरनाम सिंह चढ़ूनी के मसले को किसान नेता कैसे सुलझाते हैं और क्या किसान आंदोलन सियासत से दूर रहते हुए अंजाम तक पहुंच पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कुरुक्षेत्र के गांव में बीजेपी और जेजेपी नेताओं के घुसने पर चेतावनी के बैनर लगा दिए गए हैं। गांव के लोगों का यह फैसला कृषि कानून के विरोध में लिया गया है। रिपोर्ट जरा देखिए। जो किसान के साथ खड़ेगा वो वही गांव में बढ़ेगा। हिंदी में लिखा है, हिंदी में पढ़कर सुना दिया। आप भी सोच रहे होंगे कि किसी ने ऐसे ही छोटा सा पोस्टर हाथ में लिया हुआ है, कौन सा बड़ी बात है। लीजिए, गांव वालों ने लटका दिया पोस्टर और आदमी ये लीजिए।
इस पोस्टर को 2 आदमियों ने नहीं पकड़ा, बल्कि इसकी मंशा के पीछे बहुत सारे लोग हैं गांव के। खबर दरअसल हरियाणा के कुरुक्षेत्र के पनीपला की है, जहां पर साफ साफ कह दिया गया है कि जो भी कोई किसानों का बहिष्कार करता है, ये गांव उसका बहिष्कार करता है। बेशक वह भाजपा हो, जेजेपी हो या फिर कोई और भी राजनीतिक पार्टी क्यों ना हो। बाकी किसान नेता रणपाल लाठर की जुबानी सुनिए, आखिर मंशा क्या है। देखिए, जो आज बीजेपी सरकार ने किसानों के साथ धोखा किया है, उस काले कानून को देखकर हम सभी ग्रामवासी यह निर्णय करते हैं कि जो भी किसानों के खिलाफ बात करता है या किसानों का बहिष्कार करता है, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे जेजेपी का हो, चाहे किसी भी अन्य दल का हो, उसको गांव में घुसने का कोई अधिकार नहीं है। सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेवार होगी, ये तो अक्सर आपने बसों, टैक्सी और कई जगहों पर लिखा पढ़ा ही होगा। इस गांव में भी कुछ ऐसी ही उदाहरण दी जाती है किसान नेता की तरफ से। अगर वो घुसा तो खुद अपनी जिम्मेवारी लेकर घुसे, क्योंकि सभी लोग नाराज हैं। सो गांव वालों ने किसान नेता रणपाल लाठर के जरिए राजनीतिक पार्टियों को संदेश दे डाला है। बाकी तस्वीरें तो कई सामने आ चुकी हैं ट्रेलर वाली, क्योंकि किसान खफा हैं इन 3 कृषि व्यापार कानूनों से। सरकार बेशक कई दौर की बैठक कर चुकी है, पर किसान मानने के लिए तैयार ही नहीं। दरअसल किसान यस और नो में ही जवाब चाहते हैं। कुरुक्षेत्र से अशोक यादव, न्यूज़ 18। हरियाणा में ग्राम सचिव की परीक्षा में पेपर लीक मामले में हिसार और पानीपत पुलिस ने बड़े स्तर पर कार्रवाई की है। अब तक इस मामले में करीब 40 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए आरोपियों से कुछ और बड़े खुलासे की उम्मीद की जा रही है। हरियाणा में एक और पेपर लीक मामले ने तूल पकड़ लिया है। एक तरफ विपक्षी दल सरकार पर निशाना साध रहे हैं, तो वहीं पुलिस भी मामले में आरोपियों की धरपकड़ में लगी हुई है। ग्राम सचिव की परीक्षा में धांधली के मामले में गठित एसआईटी ने अब तक करीब 40 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी पानीपत के अनुसार सुमलखा और करनाल से मुख्य आरोपियों के पकड़े जाने के बाद कुछ और आरोपियों का खुलासा भी हो सकता है। जो सैटरडे को भी हमने कुछ गिरफ्तारियां की है, जिसमें कि पता चला है कि सैटरडे को कुछ लोगों ने पेपर जब चालू हो चुका था, एग्जाम चालू हो चुका था, तो उस समय किसी माध्यम से पेपर को बाहर पहुंचा के सर्वर के पास और उससे उसका की जनरेट करके फिर उसको अंदर लाके कुछ लोगों को दिया गया। इस मामले को लेकर एनएसयूआई हरियाणा के प्रधान दिव्यांशु बुद्धि राजा कार्यकर्ताओं के साथ एचएसएससी चेयरमैन के कार्यकाल का घेराव करने पहुंचे। एनएसयूआई के कार्यकर्ता एचएससी के ऑफिस में घुस गए। इनका कहना है कि पेपर लीक के मामलों से छात्र और युवा अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। उसके बावजूद पेपर लीक हुआ और आज वो पेपर कैंसिल हो चुका है। इसी को लेकर आज हमारा ये धरना है। ये एचएसएससी बोर्ड नहीं है, मच्छी बाजार बन चुका है। बता दें कि 600 पदों पर भर्ती के लिए लाखों युवाओं ने परीक्षा दी और इतने बड़े स्तर पर कई जिलों में एक साथ धांधली सामने आने की वजह से हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने परीक्षा रद्द करने का प्रशासनिक फैसला लिया है। पानीपत, हिसार, जींद, सिरसा, करनाल समेत कई परीक्षा केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के जरिए आंसर को पहुंचाने के मामले निकलकर सामने आए हैं। एसआईटी मामले की जांच कर रही है। अभी जांच में बहुत कुछ सामने आना बाकी है। पूरी जांच के बाद ही पता चल सकेगा कि आरोपियों का कितना बड़ा नेटवर्क परीक्षा भर्ती घोटाले में शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद जरूरत होगी कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सकें और नेटवर्क 18 इस मुहिम में
हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार। अब आपको हिमाचल के नूरपुर की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां विकास के नाम पर वोट तो मांगे जाते हैं, लेकिन हकीकत क्या है, यह रिपोर्ट आप देखेंगे समझ आएगा। ये तस्वीरें नूरपुर की पंचायत ठेहड़ की हैं, जहां विकास के नाम पर साल दर साल दावे तो किए जाते हैं, लेकिन विकास की असल हकीकत देखिए कि यहां अभी तक लोगों को पक्के रास्ते तक भी नसीब नहीं हुए। लोगों का कहना है कि जब चुनाव होते हैं तो सियासी दल यहां विकास के दावों की लाइनें लगा देते हैं, लेकिन हकीकत देखिए कि आज भी हम पक्के रास्तों से महरूम हैं। और ये रास्ता है शुरू से इतना ख़राब है, कभी भी हमारे बच्चे या काफ़ी बार गिर चुके हैं। ये आम स्कूल जाने के लिए बच्चों का रास्ता है, आम लोग आते जाते भी हैं, परंतु इस रास्ते की किसी ने भी सुध नहीं ली। अब हैरानी देखें, यहाँ विकास के दावों की लाइन लगाई जाती है, वहाँ पर 15 साल बाद पानी की सुविधा मुहैया करवाई जाती है। ऐसे में रास्तों का तो क्या ही कहना। लोगों का कहना है कि इस रास्ते में अक्सर लोग हादसे का शिकार भी हो जाते हैं, और तो और इसी रास्ते से छोटे छोटे बच्चे अपने स्कूलों को जाते हैं। यही वजह है कि यहाँ लोगों के अंदर एक डर हमेशा कायम रहता है। सड़कों का आप ये हालत देख लीजिए, हमारे पीछे जो सड़क है इसकी 2 बार मरम्मत हो चुकी है, लेकिन इस टाइम भी ये अपनी वर्स्ट कंडीशन में है। लोगों के मुताबिक एक बार लीपा पोती के लिए सड़क को बनाया भी गया था, लेकिन बनाने के कुछ ही वक्त बाद सड़क की हालत खस्ता हो गई, बदहाल हो गई, बदतर हो गई, और बनाने वालों ने दोबारा इसकी सुध लेना जरूरी ही नहीं समझा। शासन प्रशासन को भी इसकी शिकायत की गई, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। अब एक बार फिर से यहाँ के निवासी शासन प्रशासन और सरकार से अपील कर रहे हैं कि यहाँ की सड़क की ओर ध्यान दिया जाए। जो विकास के दावे आप लोग करते हैं, उन विकास के दावों पर खरे उतरने की भी कोशिश की जाए। नूरपुर से भूषण शर्मा, न्यूज़ 18।